بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عرصہ پہلے ملک فارس پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل شکار کھیلنے کو چاہا۔ حکم کی دیر تھی کہ تمام انتظامات ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا۔ کئی چیر، شیتے اور باراسنگھے شکار کیے۔ شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر بھی طے نہیں کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان تیر جوڑا اور نشانہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ نشانہ چوک گیا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ہرن کے تعامل میں چل دیا۔ محافظ اور وزیر وغیرہ بھی پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا گیا۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لے کر تیر چلائے، لیکن ہرن کو ایک بھی نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا تھا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کے باغ موڑی اور ریڑھی لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی کسی کی رونے کی آواز اس کی کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویرانے اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں ہے، لیکن پھر اس سے خیال آیا کہ ممکن ہے کہ کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے آ رہی ہے۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور لگام تھام کر اس کی طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کھو تھا، جس کی منڈیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید اور بال سنہرے تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خاتون، تو کون ہے اور اس ویرانے جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتاؤ کس نے تم پر ظلم کیا ہے؟ عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام نگینا ہے، میں پڑوس ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تو چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خونخوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی بیوی ملکہ تو کئی سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے نگینا کو گھوڑے پر بیٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کا وزیر اور محافظ بھی مل گئے، جو اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ نے ان کے ساتھ واپس محل میں لوٹا۔ اگلے دن بادشاہ نے نگینا سے شادی کر لی اور وہ نگینا ملکہ بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے۔ ہر طرف نکارے اور خوشیاں کے دیپ جلنے لگے۔ ہر اعلیٰ و ادنیٰ خوشیاں منا رہے تھے۔ کئی دن تک بادشاہ کی شادی کی خوشی میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادہ رحمان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا، مگر نئی ملکہ آنے کے بعد کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزاد رحمان، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بڑے پریشان ہوئے۔ ملک کے بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ اب تو شہزاد رحمان بھی بوکھلا اٹھا کہ کیا کرے۔ دور کے ممالک سے حکیم منگوائے گئے، لیکن بیماری کا علاج تو ایک طرف رہا، یہی نہیں پتا چل سکا کہ مرض کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے تھے۔ شہزاد رحمان نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑی نجومی کے پاس جانا چاہیے، تاکہ پتا چل سکے کہ کیا بات ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزاد رحمان اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزاد اچھل پڑا اور بولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نجومی بابا، میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ نجومی نے کہا، اے قابل احترام شہزادے، میرا حساب بتاتا ہے کہ ملکہ اصل میں انسان نہیں ہے، بلکہ ناگن ہے، انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔
सुनो, जब कोई सांप 500 साल का हो जाता है और इन 500 सालों में किसी इंसान की नजर इस पर ना पड़ी हो तो इसे यह ताकत हासिल हो जाती है कि वो जब चाहे इंसान या किसी भी जानवर का रूप धार सकता है। मलका भी एक ऐसी ही नागिन है जिसे रूप बदलने की ताकत मिल चुकी है और अब वो बादशाह के जिस्म में अपना थोड़ा थोड़ा जहर दाखिल कर रही है। शहजाद रहमान ने परेशान होकर पूछा, जुम्मी बाबा, अगर तुम सही कह रहे हो तो एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर नागिन को बादशाह सलामत से क्या दुश्मनी है जो वो उन्हें मार डालना चाहती है। नजूमी ने दोबारा जायचा बनाया और कहा, शहजादा हुजूर, आज से 10 साल कबल बादशाह सलामत ने जंगल में एक काले नाग को हलाक कर दिया था। वो काला नाग इस नागिन का भाई था और अब यह इंतकाम ले रही है। नागिन अगर चाहे तो एक ही बार डसकर बादशाह सलामत को हलाक कर डाल, अगर वो अपना जहर थोड़ा थोड़ा बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है ताकि वो सिसक सिसक कर मरे। शहजादा ने यह सुना तो गुस्से से कांपने लगा, म्यान से तलवार निकालकर लहराई और घर गया, मैं इस बदबख्त नागिन को अभी जाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नजूमी ने फौरन कहा, नहीं शहजादा हुजूर, ऐसा करना मुनासिब ना होगा। वो बड़ी चालाक नागिन है, अगर आपका वार खा ले गया तो वो आपको हरगिज ना छोड़ेगी और डस लेगी। शहजादा ने कहा, अच्छा फिर मुझे क्या करना चाहिए? नजूमी बोला, नागिन को तुम सिर्फ इस वक्त हलाक कर सकते हो जब वो नागिन के रूप में हो। तुम्हारा तीर सीधा जाकर इसके फन में लगना चाहिए। याद रखो, अगर तुम्हारा निशा चूक गया तो तुम नागिन के गुस्से से ना बच सकोगे, वो तुम्हें डसकर हलाक कर देगी। शहजादा ने सवाल किया, लेकिन ए नजूमी बाबा, मैं मलका को इंसान से नागिन के रूप में आने पर किस तरह मजबूर कर सकता हूँ? नजूमी ने मुस्कुरा कर कहा, इसका हल भी मेरे पास है। मैं तुम्हें एक खास दवाई की पुड़िया देता हूँ। तुम आज रात खाना खाते वक्त होशियारी से वो दवाई पानी में डाल के मलका को पिला देना और बादशाह की ख्वाबगाह में मौजूद पानी की सुराही को खाली कर देना और ख्वाबगाह के दरवाजे पे ताला लगा देना। इस दवाई के असर से आधी रात के वक्त मलका को शदीद प्यास लगेगी और फिर जो होगा वो तुम खुद ही देख लोगे। अगर एक बात ध्यान से सुन लो, यह काम बड़ी होशियारी से करना होगा, मलका को जर्रा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। शहजाद ने नजूमी से दवाई की पुड़िया ली और कहा, नजूमी बाबा, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। यह कहकर शहजादा महल में वापस आ गया। रात हुई और खाने का वक्त आया तो शहजादा ने बड़ी होशियारी से दवाई मलका के पानी के गिलास में डाल दी। मलका को पता ही ना चल सका और वो पानी पी गई। थोड़ी देर बाद ही शहजादा उठ खड़ा हुआ। मलका ने हैरानी से कहा, क्या बात है शहजादा, आज तुमने बहुत कम खाना खाया है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, आज भूख कुछ कम थी, आप इत्मीनान से खाए। शहजादा ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से निकल आया। बाहर आते ही वो तेजी से दौड़ता हुआ बादशाह की ख्वाबगाह में पहुंचा और सुराही का पानी बहा दिया। इस काम से फारिग होकर शहजादा ख्वाबगाह के सामने वाले कमरे में छुप गया। कुछ देर बाद ही बादशाह और मलका ख्वाबगाह में चले गए। शहजादा ने फौरन नजूमी की हिदायत के मुताबिक बाहर ताला लगा दिया और खुद तीर कमान लेकर रोशनदान में बैठ गया। बादशाह और मलका मुसहरी पर पड़े सो रहे थे। रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो एकाएक मलका को जोरदार प्यास लगी। वो उठी और सुराही से पानी लेना चाहा, मगर यह सुराही तो शहजादा ने पहले ही खाली कर दी थी। मलका ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाजा तो बंद था। रहमान रोशनदान से छुपा बैठा था, यह सब मंजर देख रहा था। दवाई के असर से मलका को ऐसी जबरदस्त प्यास लगी कि इसका मुंह खुल गया। इसे यूं लगा जैसे हलक में कांटों का जंगल उगाया हो। मलका परेशान हो गई कि कहां से पानी हासिल करे। प्यास बुझाने के लिए ख्वाबगाह से एक छोटी सी नाली बाहर को जाती थी। यह खाली नाली गंदे पानी के निकास के लिए बनाई गई थी। मलका ने फैसला किया कि नागिन बनकर नाली के रास्ते बाहर जाकर पानी पीना चाहिए। वो दबे कदमों से बादशाह के पास आई। बादशाह तो घोड़े बेचकर सो रहा था। मलका को जब यह इत्मीनान हो गया कि बादशाह बेखबर सोया है तो इसने जमीन पर एक लोट लगाई और अगले ही लम्हे फर्श पर मलका की जगह एक स्याह नागिन मौजूद थी। शहजादा ने जब ये मंजर देखा तो कांप उठा। नजूमी बाबा ने सोच कर ही कहा था, नागिन की स्याह खाल चमक रही थी। मलखाती लहराती नाली के रास्ते बाहर निकल गई। शहजादा को वक्त ही ना मिला कि तीर चला सके। शहजादा जल्दी से रोशनदान से उतरा और घूमकर बाग में पहुंच गया। इसे यकीन था कि नागिन मलका बाग के तालाब में पानी पीने गई है। चांदनी रात थी। चांद की जर्द रोशनी में सब्जा बड़ा भला मालूम हो रहा था।
शहजादा का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। मलका वाकई तालाब से पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद इसने फन फैलाकर एक जोरदार फुंकार मारी। शहजादा ऐसी जगह छुपा खड़ा था कि मलका के फन का निशाना नहीं ले सकता था। नागिन मलका कुछ देर को घास पर लहराती रही, फिर एक तरफ चल पड़ी। इसका रुख ख्वाबगाह की तरफ नहीं था, बल्कि वो महल से बाहर वाले रास्ते पर जा रही थी। शहजादा रहमान इसके पीछे पीछे था। महल से निकलकर मलका इस रास्ते पे होली जो जंगल को जाता था। शहजादा रहमान बड़ी होशियारी से इसका पीछा कर रहा था। यह भी खुदा का शुक्र था कि चांदनी रात थी, वरना अंधेरे में नागिन कब आती कब जाती उसे पता ही न चलता। नागिन मलका घने जंगल में पहुंच गई और एक गार के बाहर रुककर इसने जोरदार फुंकार मारी। इसकी फुंकार के ख्वाबगाह में गार के अंदर एक दूसरे नाग की खौफनाक फुंकार सुनाई दी। उफ खुदाया, कैसी भयानक फुंकार थी! वो जैसे एक वक्त में कई देगें चूल्हे पर चढ़ी सनसना रही हो। फुंकार के साथ ही झाड़ियों के सरकने और टूटने की आवाजें आईं और फिर एक नहायत बड़ा नमूदार सांप गार से बाहर निकल आया। नाक के सिया जिस पर सपेरे रंग का ताज था, जिसे तेज शाइन निकल रही थी। यह जंगल का शेष नाग था, जो नागिन के सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया था। नागिन सरमस्ती के आलम में झूम रही थी। शेष नाग की आंखें शोलों की मानिंद दहक रही थी और दो शाखे जबान बिजली की तरह लप लप लपा रही थी। दोनों नाग कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर नागिन शेष नाग से लिपट गई और वो दोनों नाचने लगे। शहजादा रहमान इस दौरान एक दरख्त पर चढ़ चुका था। ताई हैरतनाक और खौफनाक मंजर देख रहा था। तीर कमान इसके हाथ में मौजूद था और वो मुनासिब मौका की तलाश में था। कुछ देर तक नाग और शेषनाग नाचते रहे, फिर एक दूसरे से अलग हुए। शेषनाग अपने गार में वापस चला गया और नागिन वापसी के लिए मुड़ी। यही वो लम्हा था जिसका शहजादा रहमान को इंतजार था। नागिन का फैला हुआ चिपटा सर इसकी आंखों के ऐन सामने था। शहजादा ने खुदा का नाम लिया और तीर छोड़ दिया। हवा को चीरता हुआ तीर सनसनाता हुआ नागिन के फन के आर पार हो गया। नागिन का उठा हुआ सर झटके से पीछे की तरफ जा गिरा। वो बड़े दर्द भरे अंदाज में फुंकारी और बल खाने लगी। बल खाते हुए नागिन ने इंसानी रूप में आने की कोशिश की, लेकिन अभी इसके ऊपर का आधा धड़ ही इंसानी शक्ल में आया था कि इसकी जान निकल गई। नागिन की फुंकारें सुनकर शेषनाग बड़े गजबनाक अंदाज में फुंकारता हुआ गार से बाहर निकला। इसके मुंह से शोले निकल रहे थे जो आसपास की झाड़ियों को जलाकर खाक कर दे रहे थे। शहजादा रहमान इसी दौरान कमान में नया तीर लगा चुका था। इसने शेषनाग की दाईं आंख का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। तीर निशाने पे बैठा नाग बुरी तरह बल खाकर तड़पने लगा। शहजादा ने झट दूसरा तीर छोड़ा और नाग की बाई आंखें भी खत्म हो गई। शेषनाग अंधा हो चुका था। इसे अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो फंकारियां मारता हुआ अपना सर बार बार दरख्तों और पत्तों पर पटक रहा था। शहजादा पे दर पे तीर चलाकर नाग को हलाक कर दिया और दरख्तों से नीचे उतर आया। आधा इंसान और आधी नागिन मलका मड़ी पड़ी थी। शहजादा ने गार में जाकर देखा कि कहीं और सांप तो नहीं है, मगर वहां तो इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों का ढेर लगा था। यह इस बदनसीब मुसाफिर की हड्डियां थी जो रास्ता भटककर शेषनाग की गार की तरफ आ निकलते थे और नाग ने उन्हें डसकर इनका गोश्त नोच नोच कर खा लिया करता था। बाहर आकर शहजादा ने मरे हुए शेषनाग का फन खंजर से चीरकर मनी बाहर निकाल लिया। सांप का मनी एक हीरे की तरह चमकदार होता है। इसमें यह खासियत होती है कि यह जहर को चूस लेता है। शेषनाग के मनी को जेब में डालकर शहजादा ने मरे हुए नागिन मलका को उठाया और महल की तरफ चल पड़ा। जिस वक्त वो महल पहुंचा, रात की तारीखी छटने लगी थी। महल के मुहाफिजों ने जब शहजाद रहमान को मलका की लाश उठाए देखा तो दंग रह गए और इस वक्त इनकी चीखें निकल गई जब उन्होंने देखा कि मलका का आधा धड़ इंसान का और आधा नागिन का है। शहजाद रहमान ने बादशाह के ख्वाबगाह पहुंचा। बादशाह बेखबर सो रहा था। शहजाद ने इसे बेदार किया और सारी कहानी सुना दी। वहशत के मारे एक बार तो बादशाह लड़ज उठा। इस ख्याल से ही इस पर कपकपी ताड़ी होकर रह गई कि वो एक खतरनाक नागिन को अपनी मलका बनाए हुए थे। इसने नागिन से शादी कर रखी थी और यही इसकी बीमारी की वजह थी। ये नागिन मलका का जहर ही था जिसने बादशाह को बीमार कर रखा था, क्योंकि अपने नाग भाई का बादशाह से इंतकाम ले रही थी। बादशाह ने शहजादा रहमान को गले से लगाया और कहा,
بیٹا تم اپنے جان پر کھیل کر اس غضبناک ناگن کو ہلاک کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ شہزادہ نے سر جھکا کر کہا ابا حضور یہ تو میرا فرض ہے، بچے ہی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا ہر حکم مانتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادہ رحمان نے شیش ناگ کا منی جیب سے نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگا دیا۔ منی نے فوراً ناگن کے زہر کو چوس لیا اور بادشاہ بھلا چنگا ہو گیا۔ اس وقت ناگن ملکہ کا جسم چر چر کر جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں راکھ کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر ہو گئے۔ دوستوں اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔